Assalamu alaikum students, welcome to History of English Literature, that is 19th century realism up to the contemporary time. Students, today our topic is T.S. Eliot. He was a modernist writer. T.S. Eliot was an American English poet, a playwright, a literary critic, a philosopher, and an editor. He was also considered as a leader of the modernist movement in poetry. Eliot exercised a strong influence on Anglo-American culture from the 1920s until the late in the century. Let's start. Eliot was born on 26th of September 1888 in Missouri, America. His father was a president of the Hydraulic Brick Company and his mother was a volunteer at the Humanity Club of St. Louis. She was also a teacher. At the time of Eliot's birth, his parents were in their mid 40s and his siblings were already grown. Eliot attended Howard University and he left with the master's and undergraduate degrees. He returned to Harvard to receive a doctorate degree in philosophy, but uh, he had to left for Europe, and from uh, it was the time of 1911 to 1914 when when he attended Harvard University for his PhD degree, but mm, uh, World War One had intervened and he never returned to Harvard to take the final oral examination for the PhD degree. He toured the continent after Harvard, and in 1914, Eliot met and began a close association with the American poet Ezra Pound. In 1915, he married his first wife, Vivienne Haywood. In 1917, began working at Lloyd Bank in London. In 1925, he left the bank to work at a publishing firm. In 1927, converted to Anglicanism, that is a sort of a religious association in England, and he dropped his US citizenship and he became a British subject. In 1933, separated from Vivienne, as Vivienne was suspected to have a love affair with Bertrand Russell, who was a British critic and a philosopher and a mathematician. Uh, they had a disturbed relationship, and once he said, to her, the marriage brought no happiness, and to me, it brought the state of mind out of which came The Wasteland. The Wasteland was a masterpiece, a poem by T.S. Eliot. Avoiding all but one meeting after her with her between 1932 and her death in 1947, but they were still husband and wife. In 1938, Vivienne was committed to the Northumberland House Mental, and she remained there till her death. Eliot remained her husband during this time. स्टूडेंट्स 1948 में उसने लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ विन किया। 1957 में उसने अपनी सेक्रेटरी एस्मे वेलरी फ्लेचर से शादी की और वो उससे तकरीबन 37 साल जूनियर थी, यानी कि उससे छोटी थी। उस एलियट की एज उस वक्त 70 इयर्स थी और एस्मे उस वक्त 32 इयर्स की थी। और फिर एलियट की डेथ के बाद उसका जितना भी लिटरेरी लेगेसी थी, उसके जितने भी मामला थे, फिर उसी ने ही ऑन किए थे उसकी दूसरी बीवी ने। 1965 में वो एम्फिजिमा की वजह से उसकी डेथ हुई, दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़। लंदन में 77 एज से उसकी लंदन में उसकी डेथ हुई और उसकी डेथ के बाद उसको उसकी एक राइटिंग थी कैट्स, 1983 में उसको 2 अवार्ड्स मिले उसकी डेथ के बाद। स्टूडेंट्स, अगर हम एलियट की थीरीज़ को देखें, उसके थीम्स को चेक करें जो उसने अपने वर्क के अंदर दिखाए हैं, तो हम ये देखते हैं कि उसकी राइटिंग ना सिर्फ स्टाइल में मॉडर्न थी, बल्कि उनका मोड
भी जिस मोड में उसने बात की थी वो भी एक मॉडर्निस्ट था, जिसमें उसका लैंग्वेज, उसका डिक्शन, उसका स्टाइल सारा का सारा मॉडर्न था। और उसने अपनी राइटिंग्स के थ्रू अपने रीडर को ऑफ बैलेंस किया कि बकौल उसके कि जो मॉडर्निस्ट एज है वो क्योटिक है, डिस्टर्ब्ड है, तो उसके अंदर सीक्वेंस नहीं है। तो एक जो इंडिविजुअल है वो बहुत मुख्तलिफ महसूस करता है। उसका कहना था कि द मॉडर्न इंडिविजुअल इज़ नो लॉन्गर एट ईज़ हेयर। और वो ईज़ पे क्यों नहीं है, वो आसानी महसूस क्यों नहीं कर रहा है, वो डिस्टर्ब क्यों है। तो चूँकि मॉडर्न एज को वो एक क्योटिक एज कहता था, डिस्टर्ब एज कहता था, तो उसका कहना था कि ये जो मॉडर्न मैन है, ये जो मॉडर्न इंडिविजुअल है, इसने एक ऐसी चीज़ का जन्म देखा है, एक ऐसी चीज़ को इसने विटनेस किया है जो पहले कभी भी नहीं हुई है और जो एक्सपेक्टेड नहीं थी। दूसरा ये है कि इस चेंज को वो जो ह्यूमन बीइंग या इंडिविजुअल फील कर रहा है, ये आसान नहीं है इसको डाइजेस्ट करना या इसको इसके साथ कंपेटिबिलिटी क्रिएट करना। और इसके साथ साथ उसने उसकी जो मॉडर्न एज की जो डिसऑर्डरलीनेस थी उसके साथ भी काउंटरैक्ट करने की कोशिश की है। वो कैसे कि उसने डिस्टर्ब्ड, स्कैटर्ड एंड अनलाइक एलिमेंट्स को एक कंसेप्चुअल यूनिटी के अंदर इकट्ठा करने की कोशिश की है। और बकौल उसके कि पोइट का माइंड एक रिसेप्टिकल की तरह होता है, एक बर्तन की तरह होता है, एक कंटेनर की तरह होता है जिसके अंदर वो नंबरलेस फीलिंग्स, फ्रेजेस, इमेजेस और अपने अपने मटेरियल को उसके अंदर डालता है। और वो तब तक डालता रहता है जब तक वो सारे पार्टिकल्स मिलके एक नई यूनिटी क्रिएट नहीं कर देते, एक नया कंपाउंड नहीं बन जाता इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री। पोएम के बारे में उसका ये ख्याल था, उसके जो एस्थेटिक व्यूज़ थे कि अ पोएम शुड बी एन ऑर्गेनिक थिंग इन इटसेल्फ, अ मेड ऑब्जेक्ट। तो अपने आप में ही वो एक खालिस चीज़ होती है और जब ये एक बार मुकम्मल हो जाती है तो फिर पोइट का उसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं रहता कि जो फीलिंग एक बार पोइट ने महसूस की और उसने उसको अपने अल्फाज में जब ढाल दिया तो फिर उसके अंदर मज़ीद चेंजेस की गुंजाइश नहीं रहती है। और इसके साथ साथ एक न्यू क्रिटिसिज्म का भी जन्म हुआ जिसमें वो टी एस एलियट का ख्याल था कि पोइट्री को एक सेपरेट आइडेंटिटी के तौर पर लिया जाए, उसको पोइट के पर्सनल इन्फ्लुएंस या उसकी पर्सनल लाइफ के साथ अटैच करके या पोइट के बैकग्राउंड के साथ अटैच करके उसको ना देखा जाए या किस इंटेंशन के तहत पोइट ने पोइट्री लिखी है, उसकी बजाय उस टेक्स्ट की एक अपनी हैसियत है और उसको पोइट से अलग करके फिर देखा जाए। और आजकल हम ये देखते हैं कि आज पोस्ट मॉडर्निज़म के टाइम पे भी टेक्स्ट को कोशिश की जाती है कि एक अलग आइडेंटिटी के तौर पे देखा जाए, बजाय कि वो पोइट या राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। अब लाइफ कैसे रिफ्लेक्ट करती है टी एस एलियट की राइटिंग में। बकौल उसके जो मॉडर्न लाइफ है वो क्योटिक है, फ्यूटाइल है, फ्रेगमेंट्री है, बिखरी हुई है। और वो ये भी आर्गू करता है कि जो मॉडर्न पोइट्री है उसको लाजमी तौर पे डिफ़िकल्ट होना चाहिए क्योंकि जो मॉडर्न एक्सपीरियंस है जो इंडिविजुअल का वो भी इंट्रिकेट है और वो भी उतना ही कम्प्लेक्स है, तो पोइट्री को भी उसी हिसाब से कम्प्लेक्स होना चाहिए। और पोइट्री के अंदर जो फ्रेगमेंट्री नेचर ऑफ लाइफ है वो भी नज़र आना चाहिए। The poet must become more and more comprehensive, more elusive, more indirect in order to force to dislocate if necessary language into his meaning. तो उसने टी एस सिलेट का ख्याल था कि पोइट को कॉम्प्लिकेटेड राइटिंग्स और उसकी सोच को कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए ताकि और उसमें उसको नए नए तजर्बे करने चाहिए ताकि वो उस जो एक्सपीरियंस है मॉडर्न लाइफ का वो उसको अच्छे से बयान कर सके। दिस नेचर ऑफ लाइफ शुड बी प्रोजेक्टेड नॉट एनालाइज्ड। और ये जो ज़िंदगी का जो प्रोजेक्ट की जो नेचर है, लाइफ की जो नेचर है, इसको
प्रोजेक्ट करे बजाय कि उसको एनालाइज करने के। पोइट का काम है लाइफ को प्रोजेक्ट करना, उसकी कम्प्लेक्सिटीज़ को, बजाय कि वो उसका एनालिसिस करे। इसका एक ऐसे था ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जो उसके पहले क्रिटिकल वॉल्यूम में अपीयर हुआ। उस क्रिटिकल वॉल्यूम का नाम था सेक्रेड वुड, ये 1920 में पब्लिश हुआ। यहाँ पर एलियट का कहना ये है कि इंडिविजुअलिटी डजंट मीन कि हम ट्रेडिशन को छोड़ दें। एक पोइट के लिए ज़रूरी है, एक राइटर के लिए ज़रूरी है कि वो अपने स्टाइल के साथ साथ अपने ट्रेडिशन को भी फॉलो करें। हम मॉडर्निज़म डजंट मीन कि हम अपने ट्रेडिशन से पीछा छुड़वा लें या अपनी कन्वेंशन से पीछा छुड़वा लें, बल्कि उसका कहना ये है कि पास्ट हमेशा प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए सर्व करता है। कभी कभी तो उस ये इन तीनों फेजेस को इंटररिलेट करता है, और बाज़ तो ये एट द सेम टाइम ये तीनों एलिमेंट्स एक जगह पे इकट्ठे होके एक थीम बना रहे होते हैं। और राइटर्स के लिए वो कहता है कि ट्रेडिशन डजंट मीन टू फॉलो द बिल्कुल ऐसा जो अभी अभी पास्ट गुजरा है हम उसको फॉलो करें। ये ट्रेडिशन का मतलब ये नहीं है। ट्रेडिशन का मतलब ये है कि आप होमर से शुरू हों और अब तक जितने भी राइटर आए हैं उन सबको आप देखें कि आप कहाँ पे जाना चाहते हैं। तो रिमोट इन टाइम हो, ये नहीं है कि आपने बिल्कुल जो इमीडिएट पास्ट है आप उसमें जा रहे हैं, ये तो एक तरह की कॉपी हो जाएगी, नॉवेल्टी नहीं रहेगी। तो होमर से लेके अब तक का जितना भी टाइम है उसके अंदर से आप देखें कि आप किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी लैंग्वेज हो, आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर मूव कर सकते हैं। और डाइवर्स इन इंटरेस्ट भी हो सकता है कि हो सकता है कि पहले राइटर ने उसे किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात की हो, जिस मामले पे उसको आप अपने कॉन्टेक्स्ट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एक नई एक राइटिंग क्रिएट करने के लिए। तो टी.एस. एलियट का ये भी कहना था कि अगर आपको प्रेजेंट के अंदर किसी चीज़ का हल नहीं मिल रहा है या कहीं पे आपको गैप नज़र आ रहा है, तो उसके लिए आप अपने पास्ट से हेल्प ले सकते हैं। अगर हम टी.एस. एलियट का स्टाइल और टेक्निक देखें, तो जो उसने टेक्निक्स यूज़ की हैं वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो हम इसको सम हाउ ऑब्सक्योर राइटर भी कह सकते हैं 20th सेंचुरी का। एक तो इसकी राइटिंग्स के हमें डिसकनेक्टेड इमेजेस नज़र आएंगे, सिंबल्स नज़र आएंगे, यानी कि एक बात को दूसरी बात से कोई तल्लुक ही नज़र नहीं आएगा। दूसरा ये कि इसके अंदर लिटरेरी अलूजन्स होंगे, रेफरेंसेस होंगे कि हम किसी और रास्ते पे चले जा रहे हैं पोइट्री को पढ़ते पढ़ते और एकदम से वो डाइवर्ट हो गया है, और हमारे लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि वो किस प्रॉस्पेक्ट में बात कर रहा है। फिर बाज़ जगहों पे उसका बड़ा हाईली एक्सप्रेसिव मीटर है, और कई कई जगहों पे उसकी जो राइमिंग स्कीम है वो फ्री वर्सेस वाली है। फिर मेटाफिज़िकल इमेजेस भी हमें नज़र आएंगे और बड़ी फ्लेक्सिबल टोन भी नज़र आएगी। हमें इसके अंदर हेलेनिज़म भी नज़र आएगा, क्योंकि वो ट्रेडिशन को भी उसी तरह फॉलो करता था जिस तरह से वो मॉडर्न, और ये सारी चीज़ों को मिला के वो एक नई राइटिंग क्रिएट करता था। अगर हम बात करें द वेस्टलैंड और प्रूफ रॉक की, तो द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ रॉक, तो सबसे पहले हम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ रॉक ये 1915 में पब्लिश हुई थी। और बहुत सारे क्रिटिक ये कहते हैं कि मॉडर्निज़म, पोइट्री के अंदर मॉडर्निज़म एक्चुअली इस पोइम के पब्लिश होने के बाद शुरू हो गया था। तो इसके अंदर जो मेजर थीम्स थे द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ में, लव था, इंडिसीजन था कि मॉडर्न जो इंडिविजुअल है, मॉडर्न मैन है, वो लव को कैसे देखता है, और ही हैज़ नो एबिलिटी टू डिसाइड वेदर टू डू और वेदर और नॉट टू डू। फिर उसकी इंडिसीजन उसका होने की वजह से उसकी पावरलेसनेस नज़र आती है, फिर उसकी इम्पोर्टेंस नज़र आती है। फिर उसके अंदर एक मोनोलॉग है,
तो वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को शो करता है, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या होता है कि बड़ी डिसकनेक्टेड थॉट्स जो ह्यूमन माइंड में फ़्लो कर रही होती हैं, तो उसको वैसे ही बयान कर दिया जाता है। द वेस्टलैंड उसने ये तब लिखी थी जब उसकी शादी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और सेपरेशन हो रही थी। उस टाइम पे 1922 में दोनों मियाँ बीवी टी.एस. एलियट और विवियन नर्वस डिसऑर्डर का शिकार थे, और उसने फिर ये बड़ी ही डिस्टर्ब टाइप की पोएम लिखी थी। इसके और भी बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनमें द हॉलो मैन भी इसी तरह का ही है, जो इंसान की परेशानियों के बारे में और उसके खालीपन के बारे में बताती है। अब अगर हम बात करें द वेस्टलैंड की, तो उसके अंदर भी इम्पोर्टेंस एंड स्टेरिलिटी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, कल्चरल फ्रेगमेंटेशन, disaffected sexual relationship in the modern faithless world, or disrupted cycles of death and regeneration, decay and growth, or the possibility of spiritual and aesthetic unity through religious belief and mythical structure. तो सिर्फ उसने ना सिर्फ मसाइल को बयान किया है, उसने इसका राइटिंग स्टाइल इसमें बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा कम्प्लेक्स है। मुख्तलिफ़ राइटिंग से उसने फ्रेगमेंट्स उठा के, डिफरेंट पीस उठा के, उनको जोड़ के और उनसे एक नई तहरीर बनाने की कोशिश की है, और उसने फिर साथ साथ उसके कुछ हल भी बताए हैं कि किस तरह से हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। तो उसमें रिलीजियस रेफरेंसेस भी हमें नज़र आते हैं। So students, it was a short introduction to T.S. Eliot, and if you have any question in your mind, you can ask that question on Easy Class platform. Thank you very much.